روپل صاحب. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں سواگت کروں گا اس دیو بھومی ویر بھومی جموں کشمیر اپنی پارٹی کا. میں نعرہ دوں گا اور آپ سب اچھے سے اس کو زندہ باد بولیں گے. جموں کشمیر افطار صاحب, سردار منجیت سنگھ صاحب اور بھوشن روپل جی اور ہمارے یوتھ کے رقیق احمد خان پروونشل پریزیڈنٹ. مشکل سمے میں الطاف بخاری جی نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں سچائی کی راجنیتی کروں گا. جیسے مجھے پارٹی نے گائیڈ کیا, نہیں چڑھنی ہے نا, لڑائی چلنی ہے نا, پل روار تے پل پار تو چلو تو پل روار تے پل. بخاری جی نے دونوں اور اپنی مات ہمارے غریب نے جنہیں ایک ہفتہ پہلا جموں کشمیر اپنی پارٹی شامل ہوئے سی اور کیونکہ الطاف بخاری صاحب دا رجوری پونچھ علاقے دا ٹور سی تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ واپسی تے تسی اتنے ضرور آؤ. اور اج الطاف بخاری صاحب اتنے وکی دے جڑے ساتھی وکی دے تھرو پارٹی نال جڑے نے انہوں ملن واسطے اتنے آئے نا. اج دا دن پوری دنیا دے وچ محنت کش لوگوں کا دن بنایا جا رہا ہے. اج لیبر ڈے دے طور تے بنایا جاتا ہے. پوری دنیا دے وچ 1 مئی نو شکاگو دے وچ جڑے مزدور اپنے حقاں دے لئی شہید ہوئے سی, اج بھی مزدور نو اپنے حقاں واسطے لڑنا پی رہا ہے. اج بھی میرے ساتھی اتنے ڈیلی ویجراں دی گل کر رہے سی, کسان نو مزدور نو ڈیلی ویجر نو دا حق نہیں دتا جاتا. اور جہاں پارٹیاں اتنے حکمران رہی نے, چاہے وہ بھارتی جنتا پارٹی رہی ہے, این سی رہی ہے, کانگریس رہی ہے, نیشنل کانفرنس رہی ہے, انہاں پارٹیاں نے لوگوں کو صرف جھوٹے لارے لگائے. بھارتی جنتا پارٹی جدوں سطح چ نہیں سی تو انہیں 2 گلاں اس لیے کہیاں. پہلا نعرہ اس ویلے یہ سی کہ بہت صحیح مہنگائی کی مار, اب کی بار مودی سرکار. تے اس ویلے مہنگائی جو سی وہ تواڈے سامنے, اور جو اج 9 سالوں کے بعد اج تسی سلنڈر دیکھ لو, ڈیزل دیکھ لو, پیٹرول دیکھ لو. دوجا نعرہ انہوں نے لگایا سی بہت سہا ہے بھرشٹاچار, اب کی بار مودی سرکار. تے بھرشٹاچار اس ویلے بھی بہت سی, لیکن اج بھی بھرشٹاچار جہاں پہلیاں حداں پار کر کے عام آدمی دا کام اج کسے دفتر چ نہیں ہو رہا, غریب آدمی دی گل کوئی نہیں سن رہا. لہذا میرے دوستو ساتھیو, میں تمہیں یہ کہنا چاہنا, یہ جڑی پارٹی جموں کشمیر اپنی پارٹی الطاف بخاری صاحب نے 3 سال پہلا بنائی, جدو ریاست ساری یہ توڑ دیتی, ساری یہ ڈوگرا پہچان ختم کر دیتی, جڑی یہ سارا اسٹیٹ سی ڈوگرا رول انہوں ختم کر کے انہوں یوٹی بنا دیتا, ادھر درجہ نیواں کرتا. تو الطاف بخاری صاحب نے پارٹی بنائی کہ اسی اس ریاست دوبارہ بحال کر رہی ہیں, اتنے دے نوجوانوں کو روزگار ملے, باہر دے لوگ اتنے نوکریاں نہ کرن اور ساری زمیناں تے سارے لوگوں کا حق رہے. اس گل کو لے کے پارٹی وجود چاہیے. آپ کو دیکھنے کے لیے میں مبارکباد دوں گا یہاں کے آرگنائزر کو, جس نے اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا. آج ایک وقت بدلاؤ کا ہے, آج ایک وقت چینج کا ہے. یہاں کسی میرے ساتھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے ایک بڑا عرصہ ایک جماعت کے ساتھ چلے, پھر اس کے بعد ہم دوسری جماعت کے ساتھ چلے, پھر ہم تیسری جماعت کے ساتھ چلے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے, اگر ہمیں ایک دوائی سے اس کا آرام نہیں آتا تو کیا پھر بھی ہم وہی دوائی کھاتے رہیں گے؟ نہیں, ہم ہمیشہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی بدلتے ہیں. جو دوائی کام نہیں کرتی اس دوائی کو ڈاکٹر بدلتا ہے. آپ جو جنتا ہے, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مسائل, آپ کی مشکلات, آپ کی پریشانی کا حل کون سی جماعت کرتی ہے؟ آپ نے کانگریس کو آزمایا, آپ نے بھاجپا کو آزمایا, آپ نے این سی کو آزمایا اور مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو آزمایا.
मैं इस जिले का रहने वाला हूं, मुझे नौशहरा के बॉर्डर के लोगों की मुश्किलात के बारे में पता है। मुझे वो दिन याद है जब पाकिस्तान के गोले यहाँ पे गिरते थे और हमारे लोग वहां से आके इस हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में बैठे थे। 6-6 महीनों तक हमारे लोगों को यहाँ एक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा, वो अपने घरों को वापस नहीं जा पाए। आज इतने अरसे के बाद भी, 5 साल गुजर जाने के बाद भी बॉर्डर के लोगों को अभी तक बंकर नहीं मिले। बॉर्डर के लोगों को फेंसिंग के आगे जाके कल्टीवेशन नहीं की जाती। उनकी कितनी मुश्किलात हैं। वो रहते तो बॉर्डर पे हैं। इस इलाके के लोग कोई सरकार से तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि बिना तनख्वाह के वो देश की रक्षा करते हैं, अपनी जानों का आगे रख के बॉर्डर पे खड़े हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। फरोख्त नहीं कर सकता था। ये सही बात है। मुझे मालूम है कि जम्मू खिते में जब 5 अगस्त 2019 को 370-35 से ये हटा, एक सपोर्ट था उस जमात को ये हटाने में। क्यों? लोगों को लगता था शायद उन रिवायती सियासतदानों ने जो हम पे ज्यादतियां की है वो 370 और 35A करके की हैं। मैंने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन 3 साल बाद आज मुझे लगता है मेरे जम्मू के साथियों को भी समझ आई है। इस एक बार फिर उनके साथ सियासतदानों ने धोखा किया। 370-35A हटने के बाद हमारी मादनियाती दौलत, रेत, बाजरी, जो आप 500 रुपए में ट्रैक्टर खरीदते थे, आज 4000 में खरीद रहे हो। क्यों? बाहर से ठेकेदार लाए गए। आज जम्मू कश्मीर के वासी नहीं वो काम करते हैं, और 10 लाख लोग इसमें काम करते थे। ट्रैक्टर वाला, मजदूर, आपका टिपर वाला। ये देखिए 500 रुपए की जगह 3000 रुपये हम दे रहे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बाकी भी बाहर से जो चीजें हुई, लेकिन हमारी जमात उस हादसे के बाद जब सामने आई, एक चीज जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर दिया। मार्च में ही एक नौकरी हाई कोर्ट में निकली थी 2020 में, जिसमें चपरासी की पोस्ट के लिए बिहार से भी दरखास्त आ गई। तो हमारे ग्रेजुएट जो लगते थे ये कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, सरकारी जॉब नहीं है, इसलिए ग्रेजुएट चपरासी के लिए अप्लाई करता है। यहाँ तक कि PhD बच्चे भी अप्लाई करते हैं। अगर ये भी पूरे हिंदुस्तान से आके लोगों के साथ हमें कम्पीट करना था तो हमारे बच्चे कहाँ जाते? यहाँ कोई इंडस्ट्री तो नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हमने वो सब जॉब जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व कराई जो भी जम्मू कश्मीर में निकले गए, और ये ऑर्डर हमने 2 अप्रैल 2020 को करवाया। इसी तरह से 95% जमीनें जो हमारी हैं वो जम्मू कश्मीर के वासी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। 5% जो छोड़ी गई है वो आपकी वो जमीन है जो इंडस्ट्री को ही लगेगी उनको। पहले भी हमारी सरकारें जो 75 से आई थी उन्होंने उनको लीज 99 साल का किया। कहने का मतलब है खोया हमने था, ढूंढना भी हमें ही था। अगर हम ढूंढने नहीं निकलते, दिल्ली में किसी को ये परेशानी नहीं थी, उन्होंने तो कुछ नहीं खोया था। पंजाब से कोई नहीं आता है कि भाई मेरा कुछ खो गया है। किसी के घर में जो चीज खो जाती है घर वाला ही ढूंढता है ना। तो आप बताइए क्या हमने गलत किया? और आज मैं आपको बता दूं, जब मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं, मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं। आज जम्मू और कश्मीर प्रांत की जो भी मसले मसाइल हैं एक जैसे हैं। जम्मू वाला चाहता है कि मेरी जमीनें, मेरे बच्चों की नौकरियां और मेरी पहचान वापस मिले। कश्मीरी भी यही चाहता है। न हमारी जमात ऑटोनॉमी के नारा देती है, न सेल्फ रूल, न माजरा शुमारी। तो जब हमारे मसले साझे हैं तो उनका हल भी तो साझाइए। आज वो वक्त गया। 72 साल हमें लोग लड़ाते रहे, कश्मीरियों को जम्मू वालों के साथ, जम्मू वालों को कश्मीरियों के साथ, कि कश्मीरी खा गए, और जम्मू वालों कश्मीरियों को कि जम्मू वाले खा गए। आज कोई किसी को नहीं खाएगा। ये हमारी अपनी रियासत है जो हमें वापस लानी है। इस पे हमारा हक। आप जो देखते हैं 2-3 ढाई महीने पहले जिन जमातों को जम्मू प्रांत ने दिल से वोट दिए थे 2014 में, उन्होंने आपके आशाने तोड़ने शुरू किए। आपकी बंजर जमीनें जो आपने अपने खून पसीने से
फसल उगाने के काबिल की थी, उन्होंने वहां निकालना चाहिए। ये जी सरकारी है, ये जी कस्टोडियन है, ये जी घास चराई है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर के वासियों के पास है, आप कौन होते हो ले जाने वाले? और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी एक ही जमीन किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। इंडस्ट्री तो है नहीं जहाँ, तो अगर वो दुकान से अपनी रोजी कमा रहा है तो क्या ये गलत है? मुझे बताइए, वो जमात कहाँ थी जिसको आपने 25 सीटें दी थी? वो जमात को आपने सीटें इसलिए दी थी कि उन्होंने कहा था ये 2 खानदान आपको कश्मीर के खा गए। जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो 24 घंटे में वो जाके एक खानदान की गोद में बैठ गए। क्या आपने कभी सोचा कि इन्होंने भी आपके साथ वही धोखाधड़ी की? अगर हम नहीं सच बात करेंगे तो फिर कौन बात करेगा सच? हमें सबको ये सोचना होगा कि हमें कब तक ये बांटेंगे रीजन के बेसिस पे, मजहब के बेसिस पे। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता, कोई भगवान को मानता, कोई गुरु को मानता है, तो एक ही ऊपर। जब बच्चा माँ की पेट में से जन्म लेता है, उसका कोई मजहब तो होता नहीं है, वो तो फिर हम उसको बताते हैं तुम सत श्री अकाल कहोगे, अस्सलाम वालेकुम कहोगे, आधा वर्ष कहोगे। सबसे बड़ा मजहब तो इंसानियत है, वो शायद हम भूल गए हैं। आज जो अगर हमारी परेशानी है वही इंसानियत हम ढूंढ रहे। आज जब हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो ये परेशानी का मसला है ना, आपके लिए भी है, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। क्यों हर एक का बच्चा, और जाता क्यों ये बच्चा? क्यों ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट घर में बैठा है, रोज कैसे मांगेगा अपने माँ बाप को कि 200 रुपये दे दो, मुझे दिन का खर्चा करना है। कहीं उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, कहीं कितनी बेटियाँ हमारी शादी के बिना भी रहती हैं। क्यों? नौकरी लग जाएंगी तब शादी हो जाएगी। अब हमारे समाज में सवाल भी तो बहुत है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ये बात अभी मैं सुन रहा था जुल्फ़िकार साहब को कि जब बॉर्डर पे शेलिंग होती है तो हमारे लोगों को क्या क्या मुसीबत है। मुझे बताइए ना, दिल्ली में किसको ये समझ है? हमें पूरे, जब मुल्क से लीडर आते हैं तो कहते हैं साहब हम लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। भैया क्या कुर्बानी दी है आप लोगों ने? कुर्बानी पूछो ना इन लोगों को जो यहाँ रहते हैं बॉर्डरों पे, जो नौशेरा के बॉर्डरों पे रहते हैं, या जो आरएसपुरा के बॉर्डर पे रहते हैं, सांबा के बॉर्डर, सुचीतगढ़ के, राजौरी, पुंछ, उड़ी, गुरेज। पहली गोली तो हम खाते हैं और हमें सिखाओगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं? देशभक्ति अगर किसी को सीखनी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों से सीखिए। अगर आज हम भारत का हिस्सा हैं, शायद भारतीय फौज का उतना उसमें योगदान नहीं है जितना जम्मू कश्मीर के लोगों का है। हमने छड़ियों से उन लोगों को वापस भगाया, उसके बाद ठीक है फौज पहुंच गई, लेकिन उठे तो पहले जम्मू कश्मीर के लोग। और आज हमें ही कहा जाता है आपकी रियासत को तोड़ देंगे, तोड़ दिया, 2 हिस्सों में कर दिया। ये हक किसने उनको दे दिया था? मुझे लगता है उन्होंने कहीं गलत समझ लिया। 2014 का मैंडेट आपका जो जम्मू ने उनको दे दिया था, वो मैंडेट रियासत को तोड़ने के लिए नहीं दिया था। क्यों? मुझे मालूम है ये रियासत, दो बात करते हैं कि उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा कि उन्होंने हमें 74 साल अंधेरे में रखा, यहाँ सच का भी नहीं बोला। इसी तरह भाजपा ने भी हमारे साथ क्या अच्छा किया? अगर अच्छा किया मुझे करेक्ट करिए, क्यों मेरी आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है नहीं बुखारी साहब आप गलत बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ, अल्ताफ साहब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं नौशेरा में, या ये बताइए कि हमारे यहाँ सोने के पहाड़, ये पत्थर नहीं निकल रहे, सोने के पहाड़ निकाल रहे हैं वो। बात मेरे भाइयों, हमें भूल जाना है कि हम जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा हम मौका दिखाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ के सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात कर सकते हैं। हम मौका कभी नहीं दिखाएंगे, क्यों? हमें पता है हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है। हमें अगर गाँव दिए तो दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनके पास ही है, उन जख्मों का इलाज भी दिल्ली के पास ही है। लेकिन अगर आप एक मजबूत मैंडेट दे देंगे, हाथ जोड़ के ही फिर भी जाएंगे, लेकिन सर ऊंचा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप की भी सबकी यही उमंग होगी कि हमारे लीडर सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात करें, आपके मसाइल की बात करें, आपके हुकूक की बात करें। हमें ये नहीं है कि साहब हमारे लिए हेलीकॉप्टर दे दो। हम उन
सियासतदानों में से नहीं है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं साहब अब हमने 50 करोड़ रुपए का घपला किया, हमें वो घपले में से निकाल दो। हम ये भी नहीं कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानते, हम शेरनियां हैं या शेर हैं, हम वो भी नहीं है। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और जो रोज देते हैं। कल के एक अखबार में मैंने पढ़ा, जम्मू का सबसे बड़ा अखबार है, कि साहब यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए साहब, मैंने वजीर आजम से दरखास्त की, होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त की, आप तो कहते हो हम बहुत मजबूत हैं, और जो हमें भी पता है, ये नहीं कि वो कहते हैं, हमारा मुल्क एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान जो बच्चों के लिए दूध नहीं दे सकता है, उनकी हालत इतनी खराब है, भला वो हमारा इलेक्शन रोक सकते हैं? अगर वो हमारा इलेक्शन रोक रहे हैं, फिर हमें बताइए, फिर तो शायद हमें उनकी तरफ बोलना पड़ेगा, जो हम मरने के दम तक नहीं बोलेंगे। क्यों? हमें अगर बोलना है तो हमें दिल्ली से बोलना है। हमारा हाल ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, ना अमेरिका में है, हमारा हाल अगर है तो दिल्ली में है। इसलिए ये ऐसे बयान